So the great Javed Akhtar Saab is here, and oh my god, this is just surreal because hello everyone, welcome back to my YouTube channel और स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और आज हम अगेन दुबई में हैं और हम लोग जा रहे हैं एक फेस्टिवल में जिसका नाम है तहबीब फेस्टिवल। ये इंडिया क्लब ऑर्गेनाइज़ कर रहा है इस फेस्टिवल को दुबई के अंदर, जिसमें ऑफ कोर्स इट इज़ फॉर आर्ट, पोइट्री, म्यूज़िक। सो गाइस, आई एम ऑन माई वे एंड आई एम रीचिंग इन नेक्स्ट अनदर 10 मिनट्स और समथिंग, 10-12 मिनट्स। और आज ट्रैफिक कम है बिकॉज इट्स UAE डे and they have this holiday for 2-3 days, but then even in the रास्ते में भी मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि आई विल गेट टू सी जावेद साहब इन रियल। मतलब आई एम अ बिग फ़ैन, क्योंकि गाइज मैंने ना पिछले 10-12 सालों में या ऑल माई लाइफ ऑलमोस्ट के जो भी मैंने कभी जावेद अख्तर साहब का कोई बाइट देखा होगा, कोई वीडियो देखा होगा, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी कहीं पे भी फी स्पीकिंग, मैंने कभी वो स्किप नहीं किया होगा। नॉट बिकॉज कि मतलब वो कितना, ये तो अभी ट्रेंड है कि नेवर स्किप जावेद अख्तर रील, बट आई हैव नॉट स्किप्ड इट बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न फ्रॉम दैट मैन। ही हैज़ सो मच ऑफ विजडम, सो मच ऑफ नॉलेज, सो मच ऑफ अवेयरनेस। बिकॉज लिखना एक बात होती है, लेकिन आप कितने अवेयर हो दुनिया को लेकर, आप कितने सेल्फ अवेयर हो और कितने आप दुनिया को लेकर अवेयर हो और कितना आप उसको अपने काम में निकाल सकते हो, काम में डाल सकते हो, वो बहुत बड़ी बात है। एंड जावेद साहब इज़ वन ग्रेट एग्जाम्पल फॉर डैट। ही इज़ नॉट जस्ट ओनली सेल्फ अवेयर, वो सेल्फ अवेयर तो डेफिनेटली हैं, वो दुनिया के बारे में भी बहुत अवेयर हैं। और हर एक इंटरव्यू में, हर एक वीडियो में जो भी मैंने उनकी देखी है, वो झलकता है, वो दिखाई देता है कि इस इंसान को कितना नॉलेज है और कितनी प्रैक्टिकल बातें करते हैं। ही इज़ नॉट समवन, मतलब यूजुअली आप उनकी एज के जो बाकी लोगों के इंटरव्यू सुनोगे तो आप देखोगे कि थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स या थोड़ी ट्रेडिशनल बातें ज़्यादा एम्फसाइज की जाती हैं। लेकिन when you watch Javed Akhtar Saab speaking, you see that he is always very relevant, always। उनका जो लहजा है या उनका जो तरीका है सोचने का, वो बहुत रेलिवेंट है हर जनरेशन के लिए। सो दैट इज़ वेरी अगेन, दैट इज़ समथिंग दैट आई रियली like to learn from him. Anyways guys, I think we're about to reach, I think 3-4 minutes more and we'll be there. Or I'm really excited and I hope you guys enjoy this vlog as well. So thank you so much, and thank you so much for the love that you guys shown on the previous video. So thank you so much. So guys, this is India Club here in Dubai. Let me show you around. Yeah, so this is India Club and यहाँ पे Indian Heights School भी है। और अभी हम जा रहे हैं अंदर and I will show you inside कि क्या क्या चल रहा है। I hope it's going to be a lovely event today. So I am quite early for the event and preparations are still going on. This is how it looks. So this is a beautiful piece by Tehseen. So yeah, and these are few other paintings by other artists. You can see. This is the soft touch of femininity. Yeah. This purple and like showing the softness of the women. Beautiful. And this, she is having a lot of stress, but trying to relax herself, but thinking about the flower garden colors.
So I have tried to depict different moods and feelings of it. So where are you from, Saima? I am from Karachi, Pakistan, but I've been in Dubai from last 12 years. I am facilitating as an art facilitator from last 17 years. Oh wow. Yeah, I have recently opened my own company as well, Hums Dreamline Events and Gallery, and I am organizing exhibitions and competition for the school kids. Great. And Do for you have an adults. Insta page? Yeah, I do have Insta page, Saima Haq DXB. One second. Yeah. So she has an Instagram page as well. Please mention your My Instagram. Instagram page is Saima Haq DXB. SAIMA HAQ DXB. Wow. You all guys can follow her, and you should definitely follow her and watch her amazing work. Thank you guys. Thank you so much. It's an absolute honor for me to be hosting this event, Tehbeeb Festival 2025 for you. तहरीब का मकसद है कि अदब के ज़रिए अमन का पैगाम फैलाया जाए, पीस थ्रू लिटरेचर। शाह समंदर इब्ने हैदर, शाह समंदर एक नजर, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हाजी अली, पिया हो अली दा बहना हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। कई फाइलों में दबी हुई मेरी लौहे दिल, किसी गर्दबाद में गुमशुदा मेरे रास्ते, वही रोजमर्रा थकान मेरे वजूद में, वही 9 से 5 की जिंदगी मेरे वास्ते। वक्त रुकता भी नहीं और गुजरता भी नहीं, कैसा नुकसान पे नुकसान हुआ चाहता है। So the great Javed Akhtar Saab is here, and oh my god, this is just surreal because all my life I have admired him so much, and now he is here just like what, 20 meters away from me. This is amazing. I just feel grateful that I'm breathing the same air, and I'm a fan because of his wisdom, knowledge. कि जावेद साहब, हम हिंदुस्तान में रहते भी हमें मैसर नहीं आते कि दुबई के नेशनल डे पर आपके सामने और तहरीब फेस्टिवल के सामने मैं और ज़्यादा इनके बारे में कुछ न कहते हुए इन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं। तमाम इंतज़ाम कर दिया गया है कि अब आपको मायूसी हो। देखिए, मैं बहुत छोटा सा स्कूल में पढ़ता था, ब्लैक एंड वाइट फिल्में होती थी उस ज़माने में, आप जैसे जो अक्सर ने देखी नहीं होंगी, पैदा भी नहीं हो। एक पिक्चर आई थी साधना, उसमें एक राधा कृष्ण नाम के कॉमेडियन थे जो राइटर भी थे, अपने डायलॉग खुद लिखते थे। उनका एक डायलॉग मैंने याद कर लिया, बड़ी इम्प्रेशन में 12-13 साल की उम्र में देखी थी पिक्चर, लेकिन वो बात बड़ी माकूल थी। वो किसी से सौदा कर रहे थे, कोई चंपाबाई थी जिन्हें वो मुजरे के लिए 500 रुपये ऑफर कर रहे थे, वो 1000 रुपये मांग रही थी, तो वेदन की माला वो रोल कर रही थी, तो ये 700 तक आए, मगर वो 1000 रुपये अटकी रही। तो वो जुमला बड़ा अच्छा था, कहने लगे कि चंपाबाई रबर को इतना न खींचो कि चबर टूट जाए। तो ये जिंदगी का मैंने मोटो बना लिया है, मैं रबर को इतना खींचने का कायल नहीं हूँ कि वो टूट जाए। तो बहरहाल आप देखिए, मैं खींच रहा हूँ, रबर टूटे तो आप जिम्मेदार हैं। ये खेल क्या है? मैं अपने ही शेर सुनाता हूँ भैया, अभी दूसरों के शेर सुनने का मौका नहीं है। कभी लिखना बंद कर दूंगा, सुनाया करूँगा। ये सुनिए, एक नज़्म है, आंसू। किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है? किसी का गम सुन के मेरी पलकों पे एक आंसू जो आ गया है, ये आंसू क्या है? ये आंसू क्या है? गवाह है मेरी दर्दमंदी का, मेरी इंसान दोस्ती का। ये आंसू क्या एक सबूत है मेरी जिंदगी में खुलूस की एक रोशनी का। ये आंसू क्या ये बता रहा है कि मेरे सीने में एक हसास दिल है, जो किसी की दिलदोज दास्तां जो सुनी तो सुन के दर्द उठा है, पराए शोरों में जल रहा है, पिघल रहा है। मगर मैं फिर खुद से पूछता हूँ, ये दास्तां तो अभी सुनी है, ये आंसू क्या ये मैं समझूं पहले कहीं नहीं था?
ये आंसू क्या बस अभी ढला है? मुझे तो शक है कि ये कहीं था। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियान एक जो फासला है, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, ये आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था। नहीं, जहां ख्यालों के शहर बसते हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, जहां मोहब्बतों के, जहां मोहब्बत के बाग में तलखियों के बबूल हैं और कुछ नहीं। मैं मिसरा जरा जहाँ से आगे हैं उलझनों के घनेरे जंगल, ये आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आप लोगों को ये सारे परफॉर्मेंसेस जो हुए वो पसंद आए हो, आप लोगों को पसंद आया हो। जावेद साहब ने इतना अच्छा समा बांधा और इतने सारे लोगों ने, दुनिया भर के से आए हुए शायरों ने बहुत अच्छा पढ़ा। कुछ का शायद मुझे इतना अच्छा नहीं भी लगा, लेकिन मुझे कुछ लोगों का बहुत अच्छा लगा। और ख़ास करके हमारे जावेद साहब ने जब पढ़ा तो एट दिस एज, ओ माय गॉड, यू नो ही इज़ 80 ईयर्स, और इस समय भी वो क्या पढ़ते हैं, और जब वो पढ़ते हैं तो क्या फीलिंग के साथ पढ़ते हैं। मतलब मैं बाकी लोगों को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा बनावटी पढ़ रहे हैं, लेकिन जावेद साहब इतने सटिलिटी से पढ़ते हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल चीर के अंदर जाता है, तो ऐसे पढ़ते हैं वो। तो बहुत मज़ा आया सुन के, और बहुत सारे म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेस थे। कुछ लोग डिफरेंटली एबल्ड लोगों ने कुछ परफॉर्म किया, दैट वाज आल्सो अमेजिंग। कुडोस टू दीज पीपल कि ऐसी चीज़ें हैं उनके लाइफ में कि वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी वो हम लोगों से कितने ज़्यादा टैलेंटेड हैं, कितना अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा दे प्रोड्यूस म्यूज़िक एंड दे प्ले म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अमेजिंग, मुझे बहुत मज़ा आया। और इस तरह की चीज़ें जब आप देखते हैं रोज़मर्रा के जीवन में, अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है, आप नए नए पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखने लगते हैं, तो विच इज़ अमेजिंग। और मुझे अगेन दिस नाइट, दिस डे, दिस इवेंट वाज सो फ्रूटफुल फॉर मी, क्योंकि मुझे वाकई एक बहुत फ्रेश एनर्जी मिली है आज। और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच इवेंट्स, एंड आई होप दैट आई ब्रिंग मोर सच इवेंट्स टू यू गाइज, so that you can also feel what I feel with these events. मुझे जब जावेद साहब पढ़ रहे थे तो उनका एक मौत का समंदर उनका राइटअप है, बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आर्ट, म्यूज़िक, पोइट्री, कुछ भी, इन सब का बेस जो है ना, दैट इज़ लव एंड दैट इज़ पीस। सो आप लोगों को सबको आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू अटेंड सच इवेंट्स and to be part of such events, so that you guys can see life in a different way. And I'm sure हर बार आप ऐसे किसी इवेंट में जाएंगे ना तो आपको कुछ अलग महसूस होगा, जो मुझे भी होता है हर बार। और इसीलिए मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं इस तरह के इवेंट्स अटेंड करता रहूं जीवन में, और हर बार एक नई एनर्जी के साथ, एक नए फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ उस इवेंट से बाहर आऊँ। So that's all for today. I really hope आप लोग को ब्लॉग पसंद आया हो। अगर आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़। और अगर मेरे व्लॉग के अंदर आपको खामियां भी दिखती हैं तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके मुझे बताइए, बिकॉज़ मैं वाकई उन खामियों पे काम करना चाहूँगा। जैसे अभी भी मुझे लग रहा है कि मुझे लाइट गाड़ी की ऑन कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं भूल गया। लेकिन अब मैं क्योंकि इतना सारा बोल चुका हूँ और अच्छा बोल चुका हूँ, तो मैं अब तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये याद रखूँगा नेक्स्ट टाइम। तो ऐसे ही अगर कोई और कमी जो मुझे याद नहीं आई लेकिन आपको लग रहा है कि वो हो सकती थी बेटर, तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, एंड आई वुड डेफिनेटली पे अटेंशन टू इट। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, बाय बाय।